oppose privatization because 1. Its major motive is profit making. 2. It totally neglects social welfare reforms. 3. It may result in closing of many rural branches because they do not make so much of profit. 4. Customer service charge will definitely increase. 90 trillion Indian rupees of deposit, 33 crore Chandhan accounts and 10 millions of customers. These are not just numbers, this is the value of trust on public sector banks by people of India, and this trust is not for sale. Banks were nationalized so that banking services can reach each and every person of the country. Strengthening of the public sector banks will strengthen the economy of our country. Banks help only the big corporates, but for the overall economic development and for the public interest, we should strengthen our public sector banks. Privatization of the public sector bank will adversely affect the poorer section of the society. This is mainly because private banks will no longer work for the social benefits of the people. I oppose privatization because it will destroy the belief of common people towards bank. It will lead to concentration of economic power in the hand of private promoters. Common people's hard-earned deposits will become insecure. Privatization is a clever way in which the wealth of the general public is legally handed over to the capitalist, and the work of the capitalist is to make profit for themselves and not public welfare. Protect our savings and please stop privatization. Public sector bank is the root of the country. Private sector bank is the loot of the country. I oppose privatization for the safe future of this country. Stop privatization of public sector banks. We appeal to the public to support the strike against privatization. First money for people's welfare, not for private corporate loot. I strongly oppose bank privatization. Oppose privatization. I oppose privatization. We oppose bank privatization. I oppose privatization. I, as a banker, for the welfare of the poor people, oppose this privatization. फ्रेंड, एक बार आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारे सभी महिला साथियों को वुमेंस डे की बहुत बहुत बधाइयाँ। और एक वीडियो मैंने पहले शुरू में डाला है जो हमारी महिला साथियों ने पब्लिक सेक्टर बैंक के बारे में अपने कुछ विचार रखे हैं। फ्रेंड्स, हमारे कई व्यूवर्स ने, हमारे कई सब्सक्राइबर साथियों ने ये निवेदन किया है या हमसे कहा है कि जो बाईपार्टाइट में कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो अभी अनसुलझे हैं, उसके बारे में क्या लेटेस्ट अपडेट है। तो फ्रेंड्स, मैं शुरुआत करता हूँ फैमिली पेंशन से। जैसा कि आपको पता है कि प्रिंसिपली आइबा ने और यूनियन ने इस पर एग्री किया था कि 30% की हाइक विदाउट एडी सीलिंग होनी है। 25 जनवरी को आइबा ने अपना डिटेल प्रपोजल डीएफएस को, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को भेज दिया था और इस संबंध में जो कुछ भी क्वेरीज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा किया गया था उसका प्रॉपर रिप्लाई आइबा ने दे दिया है, परंतु अभी तक डीएफएस द्वारा इसका अप्रूवल नहीं आया है। फ्रेंड्स, ये लेटेस्ट अपडेट्स है क्योंकि अभी तक कोई अप्रूवल नहीं आया है। इसका अप्रूवल अगर तुरंत आता है तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। दूसरा, पेंशन अपडेशन के बारे में। फ्रेंड्स, आज की स्थिति ऐसी है कि अभी तक आइबा द्वारा कोई भी प्रपोजल पेंशन अपडेशन के बारे में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को नहीं भेजा गया है। सोशल मीडिया पे जितनी भी बातें आ रही हैं, हमारे रिटायरी एसोसिएशन के लोग एमपी से, एमएलए से, मंत्री से, मिनिस्टर से मिल रहे हैं। वो केवल बेचारे इसलिए मिल रहे हैं कि हम अपनी आवाज़ उन तक पहुंचा सकें ताकि वो मिनिस्ट्री तक के बात पहुंच सके। लेकिन ये बात हमारे सोशल मीडिया पे चाहे हम ट्वीट करके करें, चाहे हम उनको लेटर लिखें, लेकिन अभी जो स्थिति है वो ऐसी है कि अभी कोई भी अपडेशन के बारे में बात इनिशिएट नहीं हुआ है। तीसरी बात है आरआरबी के में 11 बाईपार्टाइट रिकमेंडेशन को सेटलमेंट को लागू होने का। तो यूनियन, आरआरबी के यूनियंस द्वारा कंटिन्यूअस हैमरिंग की जा रही है डीएफएस को, स्पॉन्सरिंग बैंक के चेयरमैन को और नाबार्ड को। लेकिन स्थिति ये है कि अभी भी ऐसा कोई अप्रूवल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से या नाबार्ड ने आरआरबी के बैंकों को नहीं दिया है ताकि उनका वे सेटलमेंट फाइनल हो सके। ये अभी प्रक्रिया लंबित है। जब तक उनका अप्रूवल नहीं आता है तब तक वे सेटलमेंट का रिकमेंडेशन आरआरबी में लागू नहीं हो पाएगा। चौथी बात है कि हमारे कुछ साथियों ने ये भी पूछा है कि एलआईसी में वे सेटलमेंट के बारे में क्या अपडेशन है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि एलआईसी में वे सेटलमेंट के बारे में निगोशिएशन अभी चल रहा है, अभी कोई फाइनल स्टेज में नहीं पहुंचा है, बल्कि एलआईसी के यूनियंस ने
18 मार्च को एक स्ट्राइक कॉल के लिए आह्वान किया है और देखते हैं कि उसके बाद क्या सफलता मिलती है, वे सेटलमेंट का रास्ता कैसे खुलता है। इसके बाद फ्रेंड्स, हम जैसा कि जानते हैं कि बैंक प्राइवेटाइजेशन के बारे में हमारे बैंकर साथी, हमारे यूनियंस अपोज कर रहे हैं और उन्होंने एक डिटेल गाइडलाइंस भी जारी की थी। उसका डेट वाइज अपडेशन मैं आपको देना चाहता हूं कि 9 मार्च को 2 इम्पॉर्टेंट इशू हैं। पहला तो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा हमारे यूनियन के साथ टॉक्स मीटिंग होनी है, जिसमें ये डिसीजन लेना है कि प्राइवेटाइजेशन के बारे में कैसे आगे बढ़ना है या क्या होना है, इस बारे में डिस्कस होगा। दूसरा, 9 मार्च को ही बैंक प्राइवेटाइजेशन के अपोजिशन में ट्विटर कैंपेन चलाया जाएगा, जिसके लिए हैशटैग करना है आपको, पीएमओ को, आईबा को और करना है, ताकि ये हमारा ट्विटर कैंपेन अगर सफल होता है तो बहुत ही उम्मीद है कि बैंक प्राइवेटाइजेशन के अपोजिशन में कुछ रास्ता रुक सके। तीसरी बात है कि 12 मार्च को बैंक ऑफ महाराष्ट्र के यूनियन ने स्ट्राइक कॉल किया है। उनका यूनियन के अपने एम्प्लॉइज़ का जो अनरेस्ट है उसके बारे में इन्होंने एक यूनियन स्ट्राइक कॉल किया है। यानी कि 12 मार्च को स्ट्राइक बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा, 13 को सेकेंड सैटरडे, 4 को संडे और 15-16 मार्च को जनरल स्ट्राइक की कॉल है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस संख्या में भाग लें, ताकि गवर्नमेंट पे असर पड़े कि बैंक प्राइवेटाइजेशन को समय से पहले ही रोका जा सके, क्योंकि बैंक प्राइवेटाइजेशन हमारे देश के हित में नहीं है। आप देख रहे हैं कि जो भी कुछ ऐसे कार्य है, अभी स्ट्रीट वेंडर्स का स्कीम जो लागू हुआ है, उस स्कीम में आप देखिए कि जिनका रोल पब्लिक सेक्टर बैंक ने जो रोल निभाया है, क्या प्राइवेट सेक्टर बैंक ने इतना रोल निभाया है? शायद नहीं। फ्रेंड्स, इसके अलावा 2 इम्पॉर्टेंट बातें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कैनरा बैंक और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, इन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि अनाउंसमेंट किया है कि कोविड इंजेक्शन हम अपने एम्प्लॉइज़ को जो भी कास्ट आएगी उसको रिम्बर्समेंट करेंगे। यानी कि 45 इयर्स प्लस जो डिजीज़ के यू वाले हमारे एम्प्लॉई हैं, अगर वो कोविड वैक्सीन लेते हैं या उनके डिपेंडेंट वैक्सीन लेते हैं, तो जो भी कास्ट आएगा वो हम रिम्बर्समेंट करेंगे। इसके लिए हमारे ये दोनों बैंक मतलब बधाई के पात्र हैं और सभी बैंकों को, सभी पब्लिक सेक्टर बैंक को और सभी इंश्योरेंस कंपनी को इनसे सीख लेनी चाहिए और ये डिक्लेयर करना चाहिए कि जो भी कास्ट आएगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वो कहाँ लगवाते हैं, यानी कि अगर प्राइवेट में लगवाने जाते हैं और जो पैसा उनको मतलब देना होता है उसका रिम्बर्समेंट बैंक करेगी। ये एक तरह से हमारे बैंकर साथियों की मदद होगी, बल्कि इन्हें ये भी चाहिए कि सर्विंग एम्प्लॉय के साथ साथ रिटायर्ड एम्प्लॉय को भी अगर रिम्बर्समेंट करें तो एक अच्छा कदम होगा। कम से कम हमारे बैंकर साथियों के हित में कुछ न कुछ हेल्प होगा। एक बार फिर से वुमेंस डे के हमारे सभी महिला साथियों को बहुत बहुत बधाई हो और फिर नेक्स्ट अपडेट के साथ फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।